Good afternoon, students. Welcome to another topic, the heating effect of electric current. As we know, the electricity has important place in the modern society. So, energy, there are various type of energy available around us. So, we are discussing about only electrical energy. In previous class, we have discussed the things which is related to electric current, resistance, and potential difference. Now, today we are going to discuss the heating effect of electric current and its application. So we know that there are various appliances in our home, like electric fan, electric heater, iron, or toaster, mobile chargers. These are the appliances which use on the electricity, but they dissipate or they produce heat. The small amount of heat they produce in form of energy. So their electrical energy, so that we can say that the electrical energy converted into heat also. So why the electrical energy converted into heat? So we know that the battery or the electric source, like a cell, so these are the source of electric energy. They are the chemical energy within the cell is generated the potential or voltage between the two terminals. So the electrons in the motion to flow the current through the resistor or the system of resistor connected to the battery. So current can be flow from the battery to resistor. We can say that the electric current passes through a resistor. They offer some resistance. That resistance, they oppose the current. Because of opposition of the current, they produce some heat. So means the loss of energy in resistance. Where we go the some energy, so we can say that the source energy is maintaining the current may be consumed into useful work, or some of an amount of energy loss in form of heat. तो हमने देखा होगा देयर आर वेरियस इक्विपमेंट लाइक इलेक्ट्रिक फैन, बल्ब, टीवी. तो जब ये काम करते हैं तो उनमें से कुछ हीट वो गर्म हो जाते हैं या उनमें से कुछ हीट हमको मिलने लगती है. तो वी ऑफनली ऑब्जर्व दीज आवर डेली लाइफ, लाइक फैन और इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस. तो हमने देखा है कि ये तो बने ही गर्म होने के लिए, है ना. मगर कुछ जो है जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया, उनका काम तो हवा देना है, तो दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. मगर क्या होता है, उसके अंदर जो कॉइल है वो एक रेजिस्टेंस है ना. तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो रजिस्टर है, जो रेजिस्टेंस किसी भी अप्लायंस में लगा हुआ है या करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करता है, हमको हीट एनर्जी देता है. तो हम उसको बोलेंगे डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, है ना. तो जो भी एनर्जी इसमें डिसिपेट हो रही है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो रही है. सो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसी कैसे समझते हैं, द इफेक्ट इज यूटिलाइज इन द डिवाइस सच इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन. तो इनमें से एक फिनोमिना बनाया हमने उसको पढ़ने के लिए, तो जूल्स ने इसके बारे में पता किया सबसे पहली बार. तो उसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. क्या है इसमें, व्हेन द करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस हीट. बस इतनी सी काम की चीज़ है. व्हेन द करंट इज फ्लोज थ्रू it produce heat. This process of the production of the heat by the flowing of electric current, it's called heating effect of electric current, है ना. तो जो भी रेजिस्टेंस, जो भी करंट फ्लो होगा और अगर वो हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना, किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा होगा और अगर वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट के कारण हीट प्रोड्यूस हुई है. तो इसी में चलते हैं. अगर for example we are taking example of electric bulb, when the electricity is passing through the filament is there inside the bulb. तो आपने देखा होगा जो उसके अंदर हमारे पास हेलिकल एक वायर है, उसको हम बोलते हैं टंगस्टन, है ना. टंगस्टन विच हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होता है, उसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है. तो वो करंट को ज़्यादा रोकेगा. जितना ज़्यादा रोकेगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा और वो गर्म होगा. हीट मिलेगी तो बल्ब भी जलेगा. तो व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द फिलामेंट इट बिकम्स हॉट एंड द स्टार्ट टू ग्लो. तो ये जलने लगेगा. तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट हीट एनर्जी, देन कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट द टंगस्टन कैन नॉट बी मेल्ट, है ना, इट डजंट मेल्ट. सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कीप इट फ्रॉम द कैचिंग फायर. तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है. तो यहाँ तो लिखा है वैक्यूम है. वैक्यूम के बाद इसके अंदर भी हम कुछ इनर्ट गैसेज होती हैं जो इसके अंदर डाली जाती है. तो इसमें से नाइट्रोजन और आर्गन है, नियॉन है, ये गैसेज को हम इसके अंदर डालते हैं. तो इनका पर्पस जो है वो है उनको ठंडा रखना. ठीक है. फिलामेंट तो वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका फिलामेंट का जो है इसके अंदर टंगस्टन, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. तो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि हमको कोई ऐसा मेल्टर नहीं मिल रहा था शुरू में जो करंट फ्लो होने के बाद टूटे ना, जलता तो रहे, है ना, और टूटे भी ना. तो जब तक टंगस्टन नहीं मिल गया तब तक हमने इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया. तो इलेक्ट्रिक बल्ब की स्टोरी हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस की थी कैसे बनाए. तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट, है ना. द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर हमको पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है हीटिंग और एक होता है मैग्नेटिंग। तो मैग्नेट वाला जो पार्ट है मैग्नेटिज्म, वो हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी जो है हमारे पास है वो हीटिंग इफेक्ट है। तो ये चीज़ समझ में आई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट प्रोड्यूस करे। तो अब ये डिपेंड करता है सब खेल करंट पे, है ना, करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो इन दिस फिगर यू कैन सी दैट द हीटिंग कॉइल इज देयर। तो इसमें से जब करंट पास हुआ तो ये फिलामेंट क्या हुआ, पहले उसमें से करंट फ्लो हुआ तो धीरे धीरे ये रेड हुआ, है ना, फिर ये येलो हुआ, फिर उसमें से जो रोशनी निकलनी शुरू हुई। तो इस तरीके से फिलामेंट काम करता है। तो हीटिंग कॉइल का काम ही यही होता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस की लेंथ भी ज़्यादा, मटेरियल भी ऐसा लिया जो टूटे ना। तो ये इस तरीके के मटेरियल से बनते हैं। तो इस मटेरियल को अगर हम बात करेंगे सर्किट में तो हम बोलेंगे उसको रेजिस्टेंस, है ना। तो इन बेसिक सर्किट यू कैन से, तो करंट होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता ही क्यों है। तो हम अगर इसके बारे में बात करें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, तो उसका कारण है ना। तो जब भी करंट फ्लो होगा सर्किट में, ठीक है, तो जब भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट पास होता हुआ जाएगा सर्किट में से। तो सर्किट में से जैसे करंट पास होता हुआ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में टकराएंगे भी। तो आपस में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, उससे हमको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, आयन, टोस्टर, ओवन, है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स। तो ये इनमें क्या होता है, करंट पास कराते हैं, रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है और हीट देता है। तो करंट बल्ब में भी हमने ये देखा था, फिलामेंट बिकम्स हॉटर एंड इमिट लाइट। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इट इज मेड ऑफ टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट इज 3380 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो हम इसका यूज़ करते हैं और ये बहुत छोटा फिलामेंट होता है ना। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये टूट सकता है फिर भी। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस को डालते हैं, ये इनर्ट गैसेस होती हैं। और इलेक्ट्रिक प्रेस में भी हमने देखा है ना। तो उसके अंदर भी क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो करंट जब पास होता है तो हीट करता है, मगर क्या होता है, उस प्लेट के बीच में जो फिलामेंट है और हमारी नीचे वाली प्लेट में उसमें करंट ना आ जाए, तो उनके बीच में क्या करते हैं, हम माइका देते हैं, है ना। तो माइका शीट रखते हैं, माइका शीट कीप इनसाइड द हैवी मेटल ब्लॉक। तो क्या होता है, हीट तो ट्रांसफर हो जाती है, मगर क्या होता है, करंट जो ऊपर वाला फिलामेंट है उसमें रहता है, कॉपर कॉइल में रहता है ऊपर वाली, और उससे क्या होता है, नीचे जो आयरन का नीचे प्लेट है उसमें करंट नहीं आता है ना। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमने देखी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करते हैं। तो अगर जो भी हीट एनर्जी है तो क्या वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो तो एनर्जी है। तो हम शुरुआत करते हैं। लेट अस कंसीडर द करंट इज पासिंग थ्रू एनी रजिस्टर आर रेजिस्टेंस, तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज वी। तो हम ले लेते हैं उसको वी वोल्ट, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज है वो है वी, है ना। और क्या चीज़ फ्लो हो रही है, काम कौन कर रहा है, वहाँ पे काम कर रहे हैं चार्जेस, है ना। तो चार्जेस जो है वो फ्लो हो रहे हैं। तो लेट द टी विल बी द टाइम ड्यूरेशन विच द चार्ज फ्लो अक्रॉस or one terminal to another terminal. The work done by the moving charges Q, है ना, the work done by the moving charges Q through the potential difference Q. तो हम उसको लिख सकते हैं QV। तो ये सब QV जो है मेरे लिए क्या है, वर्क डन है। Q and V is the work done। तो अब वर्क डन मिल गया हमको, तो अपॉन टाइम यानी कि पावर होती है, एनर्जी वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, इट्स कॉल्ड पावर। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं, द सोर्स मस्ट बी द एनर्जी विच इज इक्वल्स टू Q and V और Q, कितने में, टाइम T। तो पावर इनपुट जो हमने पावर दिया वो कितना हुआ, चार्जेस दिए हमने पावर के फॉर्म में, तो वोल्टेज में गया। तो उसने जो लिया हमने, वी कैन राइट Q अपॉन T को हम लिख सकते हैं करंट। तो ये बन गया VI, है ना। तो व्हाट इज करंट, करंट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। तो पर यूनिट टाइम, तो कितने चार्ज अमाउंट में फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी सर्किट में अपॉन टाइम, तो वी कैन राइट VI, ठीक। तो अब हम बात करते हैं हीट की। तो अभी हम ऊपर वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पावर वी कैन मल्टीप्लाई T बोथ साइड। तो इलेक्ट्रिक पावर इज मल्टीप्लाई विद टाइम, विल गेट एनर्जी, ठीक है। तो ये हमें मिलेगी हीट एनर्जी। तो हम उसको लिखेंगे E के बजाय H। तो H इज इक्वल्स टू, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, वही चीज़, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर में अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। तो जो भी हीट में इनपुट तो हमने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट होगी हीट में। तो कितनी एनर्जी पर डिसिपेट हुई या कंज्यूम हो सकती है, वो हो सकती है ये, है ना। ये डिपेंड करता है इस पर। नाउ अप्लाई ओम्स लॉ। तो वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ, तो वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ V एंड I, है ना। तो V को भी रिप्लेस कर सकते हैं, I को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर फिलहाल में वी आर रिप्लेसिंग द पोटेंशियल वैल्यू V ओनली। तो वी कैन राइट, है ना। तो वी कैन राइट, सॉरी, वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू, है ना, V इज इक्वल्स टू IR। तो नाउ व्हेन पुटिंग दिस वैल्यू IR ओवर हियर, तो वी विल गेट दिस, ठीक है। तो जो भी एनर्जी मिल रही है हमको, वो कितनी मिल रही है, I स्क्वायर, है ना।
तो आई स्क्वायर आर टी, इतने फॉर्म में हमको ये मिल रही है एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये? एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हमने उसका नाम भी रखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। तो करंट जो मिल रहा है वो जूल्स, इसके बारे में पता किया कि कितने करंट में कितनी हीट मिल रही है, डिसिपेट हो रही है, तो उसका नाम भी इसी पे रखा हुआ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो हमको जब भी जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो हमको ये मालूम है ना कहाँ से हमने शुरू किया, पावर निकाली, फिर हमने हीट एनर्जी निकाली, फिर ओम्स लॉ लगाया और हमको फिर ये वैल्यू मिली, है ना। तो आगे बात करते हैं। नाउ जूल्स लॉ, इफ द करंट इज आई फ्लो थ्रू अ कंडक्टर कीप्स अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस वी फॉर द टाइम टी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चार्जेस ने काम किया या करंट एक जगह से दूसरी जगह गया, तो उसमें जो भी वर्क डन हुआ, है ना, तो उसमें भागीदारी किसकी थी? वी और आई की। तो वी कैन राइट दिस वर्क डन वी आई टी एंड एच। तो जो वर्क डन होगा वही हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में भी होगा कन्वर्ट। तो अगर हम उसको बोलें कि ये पावर है, तो पावर के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमको? तो ये लिखना पड़ेगा एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर ये वर्क डन है ना, ये लिखा है वर्क डन, और यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इतनी, तो ये हमको मिली, जितनी एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर ही थी। तो इसलिए हमने उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें याद रखने वाली हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हीट इनपुट भी और आउटपुट में तो डिसिपेट ही हुई होगी। Okay, let's revise all the derivation और important formulas we have learned this chapter। तो पहले हमने क्या किया, पावर निकाला, पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो इनपुट दी हमने, ठीक है। तो जो इनपुट में दिया वो क्या दिया हमने? पावर दी। तो वो किस में थी? जितना भी चार्ज ने काम किया साइन के साथ, है ना, तो पोटेंशियल के अक्रॉस, तो उसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू वी आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे V इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो ये मिलता जुलता थोड़ा फॉर्मूला है, मगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर पावर है। इस चीज़ को याद रखना है ना। दूसरी चीज़ हमने देखी, द करंट सप्लाई थ्रू अ सर्किट। तो हमने सर्किट में दिया, तो हमने क्या किया? टी से बहुत दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरफ भी हमने क्या किया? टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है, तो टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पावर मल्टीप्लाई टाइम विल गेट एनर्जी। तो ये क्या मिली हमको? हीट एनर्जी मिली। द हीट एनर्जी, है ना, तो एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, सो दैट द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस टाइम टी। तो हमको मिलेगा, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम दो चीज़ें बना सकते हैं। एक तो बनाया हमने अप्लाई ओम्स लॉ, वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वी को रिप्लेस किया, तो हमको मिल गया ये आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं आई को रिप्लेस कर देता तो क्या मिलता मुझे? तो मुझे मिलता वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अगर हम जब भी बात करेंगे डिसिपेशन और हीट की, तो हम बात करेंगे कॉपर लॉसेस की, है ना। तो हम अभी कंसीडर कर रहे हैं प्योरली रजिस्टर है और कॉपर लॉसेस हो रहे हैं, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आया, वोल्टेज कांस्टेंट है हर इक्विपमेंट का। तो ऐसे केस में हम ये लिखेंगे। तो इस चीज़ का याद रखना है, ये कब आएगा? जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न करना है कि हमारे पास ये फॉर्मूला जो है हमें याद ही रहे। किसके लिए है ये? हीट के लिए। दूसरी चीज़ याद रखनी है, अगर पावर पूछा हुआ है तो ये पावर देखा होगा, हर बैटरी, हर चीज़ पे अप्लाइंसेस के ऊपर उसका वॉटेज लिखा होता है ना, कितना यूज़ किया होगा, लाइक 10 वाट, 100 वाट बल्ब। तो देखा होगा ये वाले जो बल्ब हैं ये होते हैं CFL, है ना, LED CFL, और 100 वाट लिखा होता है तो ये वो टंगस्टन वाले, है ना। तो टंगस्टन वाले बल्ब होते हैं, 100 वाट का बल्ब होता है। तो अब इनको हम रिप्लेस कर दिया हमने CFL और LED बल्ब से। तो हमने क्यों किया? इसलिए क्योंकि इनकी पावर कंजप्शन कम है। पावर कंजप्शन कम है तो इनका जो बिजली का बिल आएगा वो कम आएगा, हीट भी कम होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, लॉसेस नहीं होंगे, हीट लॉसेस। तो ये मेरे लिए अच्छा है ना। तो इस तरीके के हम अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं। तो इससे अलग अप्लाइंसेस है जो हमको देखने को नहीं मिलता, मगर वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है ना। तो वो है विच इज़ फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी इसी तरीके से काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम क्या होता है? छोटी सी पतली सी फ्यूज़ वायर होती है ना। In figure you can see the small thin wire between the two end of terminal, that the metal cap is there। तो ये है हमारे पास, हम छोटे इक्विपमेंट जहाँ यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उनमें ये फ्यूज़ लगाते हैं, है ना। तो फ्यूज़ ये टीवी में जनरली छोटे इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं, उनमें ये लगा होता है। तो अगर ज़्यादा करंट आएगा तो ये वायर में से फ्लो होगा, हीट होगी और ये वायर मेल्ट हो जाएगी। तो क्या होगा? हमारा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वी कैन सी दैट। और है यहाँ पर दिया हुआ है हमको फ्यूज़। तो फ्यूज़ जो है वो सर्किट में लगा होता है, इस तरीके का इसका सिंबल है, हमने पहले पढ़ा है। और ये देखा है किटकैट फ्यूज़ होते हैं, जो पहले हमारे घर में जहाँ लाइट आती है वहाँ लगाया जाता है। तो जहाँ भी लाइट का सोर्स आता है और जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, जहाँ डिसिपेट होने वाली, उसके बीच में फ्यूज़ को हमेशा इंप्लीमेंट किया जाता है। काम क्या होता है? इसमें जब भी करंट फ्लो होगा तो ये वायर क्या होगी? गर्म होगी, है ना। और अगर एक्सेसिव हीट हो जाएगी, उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग डोमेस्टिक एग्जाम्पल इज़ 5, है ना। तो डोमेस्टिक सर्किट में हमारे 5 एम्पीयर करंट आता है किसी सर्किट में, तो ये तब तक काम करेगा। मगर अगर ये तब तक तो काम करेगा, इन केस ऑफ 5.1 एम्पीयर ये करंट ज़्यादा है तो मेरी डिवाइस ख़राब हो सकती है। तो ये क्या होगा? ये सर्किट फ्यूज यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा फ्यूज़, तो मेरे अप्लाइंसेस में ज़्यादा करंट नहीं पहुँच पाएगा और ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, है ना। तो ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, मगर इसका प्रिंसिपल क्या है? तो वो है
है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इसका बेसिक फिनोमेना जो है वो काम करता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस भी हम बोल सकते हैं। तो जैसे बल्ब है उसके साथ ये भी है इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक आयरन भी है, वो भी इसी का एप्लीकेशन है। ठीक ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर, तो हम इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो बुक में ज़रा इसके बारे में है नहीं, तो मुझे थोड़ा एक क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का मेरी जिंदगी में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, तो मुझको ऐसे समझते हैं क्वेश्चन पूछ के, जैसे वाई द 100 वॉट बल्ब प्रोड्यूसेस मोर हीट देन CFL। तो CFL जो देख सकते हैं वी कैन सी वो है, तो यहाँ पर दिया हुआ हमको CFL और ये दिया हुआ हमको 100 वॉट का बल्ब, है ना। तो पहले तो ये चलते थे, अब धीरे धीरे क्या किया, ये बंद हो गए, फिर ये वाले कम हो गए और हमने LED यूज़ करना शुरू किया और CFL के छोटे बल्ब यूज़ किए। लाइट हमको सेम मिलती है, हमको एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी चाहिए। तो ल्यूमिनस मतलब हमको कितना प्रकाश मिल रहा है, उससे लाइट मिल रही है ना, तो हम वो देखते हैं। तो इसमें लाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा है उसको मिलने की, और ये वाले जो बल्ब हैं ये पावर कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हम इनको धीरे धीरे हमने क्या किया, बल्ब को बंद कर दिया। तो अब ये वाले बल्ब ज़्यादा बिजली कैसे खाते हैं, इनकी है पावर। पावर का मतलब होता है 100 वॉट दिया हुआ है, यानी कि 100 वॉट इज इक्वल्स टू, घर में हमारे पास है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, है ना। तो वोल्टेज तो सभी डिवाइसेस को सेम मिलता है, तो मैं ले लेता हूँ उसको 230 वोल्ट, 230 टू 40 वोल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है ना। तो जब ये पावर ज़्यादा है तो करंट का भी अमाउंट ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज़ को, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते वोल्टेज को, ये सबके लिए सेम है, तो हमको करंट को भी कम करना है ना। तो उस जैसे करंट को कम करेंगे तो अभी हमने पढ़ा हीट, है ना। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो जितना मेरा करंट कम होगा उतनी हीट भी कम होगी, समझ में आया। जितना मेरे पास करंट की वैल्यू कम होगी उतना मेरे पास हीट लॉसेस भी कम होंगे। तो यहाँ पर तो मैं करंट को कम करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज को तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं इधर वाला पार्ट, तो ऐसी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जिनका पावर कंजप्शन कम हो। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादा करता है 100 वॉट, क्योंकि उसका वोल्टेज और करंट दोनों ज़्यादा है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, तो जो टंगस्टन टाइप का बल्ब है, जो कंडेंसन बल्ब है, वो क्या करते हैं, मोर पावर मीन्स मोर करंट रिक्वायर्ड, इनको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू LED, LCD और CFL। ये सब जो है वो छोटे बल्ब हैं, इनको बहुत कम वॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, जो टंगस्टन टाइप के ये हैं, ये ज़्यादा फिलामेंट चाहिए उनको और ज़्यादा हीट डिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी भी लेंगे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि बिल भी ज़्यादा आएगा। तो हमने इसलिए धीरे धीरे इनको अपनी जो डेली लाइफ है उनमें से बाहर कर दिया और हम अब यूज़ करते हैं CFL या LED, है ना। हियर इज एग्जाम्पल ऑफ NCERT, है ना। तो यहाँ पर अब हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए सबके। फॉर्मूले अगर मुझे सबके याद हैं तो वी कैन सॉल्व दिस। तो हमने अभी 3 चीज़ें पढ़ी जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट थी, एक था फॉर्मूला जिसमें था पावर का और एक था हीट, है ना। तो हीट एनर्जी कितनी है, और एक चीज़ हमने पढ़ी एप्लीकेशन। तो जो काम की चीज़ है वो है न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 12.11, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दिया एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। तो एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 4 ओम का, इसमें से करंट पास होता जा रहा है, हीट मिल रही है। तो उसने पूछा भैया कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा ये, तो उसने बोला कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, 100 जूल हीट प्रोड्यूस करेगा। इस रेजिस्टेंस में 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक, छोटा रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हीट एनर्जी मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, और उसने पूछा ईच सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के लिए पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो हमको निकालना है V। फॉर्मूला अब हमको क्लियर है, फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा, एक पढ़ा पावर की हीट के लिए फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू, ठीक, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला हमने पढ़ा H इज इक्वल्स टू V² अपॉन, ठीक, R T, ठीक। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा H इज इक्वल्स टू I² R T। दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों हीट डेसिपेशन के लिए, कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, कितना डिसिपेट होती है, ये दोनों के लिए है ना, कितनी प्रोड्यूस करता है या कितनी डिसिपेट होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास अभी काम का है, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ है हमको टाइम दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन में हमको करंट नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस तो दिया और टाइम दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये अप्लाई करना है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। तो नाउ, तो दोनों में से अगर हम देखेंगे तो कौन सी चीज़ हमारे काम की है, तो वो वाली पहले हम देखेंगे और उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो पहले तो हमें पोटेंशियल पता करना है। तो अगर मैं ये सब पता करने के बजाय इस तरीके से करने के बजाय या तो पहले करंट पता करूँ, फिर करंट की वैल्यू को रखूँ और ये VIR मिल जाएगा ओम्स लॉ में, है ना। तो मेरे पास इससे सिंपल जो तरीका है एक लाइन में करने वाला, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर यही है। अब इसमें क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा H इज इक्वल्स टू V² बाय, ठीक, R T।
तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलें वैल्यू पुट करते हैं। तो वी स्क्वायर कितना है, वी तो दिया हुआ है हमारे पास, पता नहीं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ वी स्क्वायर। आर क्या है मेरे पास, आर है मेरे पास रेजिस्टेंस 4 ओम, करंट दिया, टाइम दिया है 1 सेकेंड, और हीट डिसिपेट कितनी हुई इधर 100 है ना। तो ये इधर चला गया, ये कितना हो गया 400 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, दो ही लाइन में आ गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, यानी कि इसको मैं रूट निकाल लूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 20 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। तो मेरे पास आया 400 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 400 वी, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 वोल्ट, ठीक। तो इतना पोटेंशियल मेरे पास आ गया। तो ये सिर्फ ये फॉर्मूला मुझे याद होने से मेरे को ये नहीं करना पड़ा और ये नहीं करना पड़ा, है ना। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इस क्वेश्चन को जल्दी से शॉर्ट में करके, तो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो आपको मालूम रहना चाहिए हम कौन सी चीज़ अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा। गलत ये भी नहीं है, सही है, मगर इससे प्रिस्क्राइब और अच्छी चीज़ है कि जब 2 बार फॉर्मूला पुट करना है, अच्छा हम एक ही बार फॉर्मूला जो एक्जैक्टली यूज़ करना है वो करें और आंसर निकाल लें, है ना। तो नेक्स्ट इसी में एक एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के अंदर, तो उस पर एक बार उसको कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और अगर कुछ भी है तो असाइनमेंट टाइम से बिल्कुल सबमिट कीजिए, और जो चीज़ लेसन छूट गए हैं तो वो पुराने आप लेसन प्लीज़ देखिए उसको।